سانحہ لاہور کے بعد دہشت گردی کے خلاف عزم اور مضبوط، دشمنوں کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، کہتے ہیں فرقہ وارانہ اور نفرت کی آگ بڑھانے والے کٹہرے میں آئیں گے، منزل کی جانب بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دشمنوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا وقت آ گیا۔ پنجاب بھر میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن۔ جنرل راحیل شریف کا حکم ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کی لاہور، فیصل آباد، سرگودا اور ملتان میں کارروائیاں۔ کالعدم تنظیموں کے کارندوں سمیت متعدد دہشت گرد گرفتار۔ دھماکے سے قبل 4 مشکوک افراد نے گیٹ نمبر 1 پر پلاننگ کی۔ شک ہونے پر پولیس اہلکار نے آواز دی تو ایک بمبار نے جھولوں کے پاس خود کو اڑا لیا۔ ایف آئی آر میں انکشافات، 30 فٹ دوری سے ملنے والے ایک سر کی مدد سے خودکش حملہ آور کا خاکہ تیار کر لیا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے نہ واک تھرو گیٹس۔ گلشن اقبال پارک میں خودکش دھماکے نے پولیس اور انتظامیہ کی سیکیورٹی کا پول کھول دیا۔ تفریح کے لیے تمام انتظامات اور سہولتیں میسر، جان و مال کی ذمہ داری کوئی محکمہ اٹھانے کو تیار نہیں۔ زعیم قادری نے بھی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ لاہور کا گلشن اجڑ گیا۔ دہشت گردوں نے تفریح گاہ کو مقتل گاہ بنا ڈالا۔ کسی کا سہاگ اجڑا، کوئی ماں لختے جگر کی لاش سینے سے لگائے تڑپتی رہی۔ ایسے ایسے دکھ کے کلیجہ منہ کو آئے۔ سانگڑ سے شادی پر آئے مہمانوں سمیت ایک ہی خاندان کے 11 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے منو مٹی تلے جا سوئے۔ 2 کزن امن اور ساحل خوشی خوشی پار گئے، بدامنی کا شکار ہو کر زندگی کے ساحل سے دور چلے گئے۔ واحد سہارا چھننے پر بیوہ ماں شدت غم سے نڈھال۔ 3 بہن بھائی کی خوشیوں کو موت نے لوٹ لیا۔ زندگی کے گلشن اجڑنے پر لاہور شہر سوگ میں ڈوبا رہا۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہا۔ بیشتر سکول اور تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند رہی۔ جن گھروں میں کل تک کہکہے گونج رہے تھے، وہاں سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ ہسپتالوں میں بھی قیامت خیز مناظر، 11 زخمیوں کی حالت اب بھی تشویشناک۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی زخموں پر الفاظ کے مرہم رکھنے جناح اسپتال پہنچے۔ کہتے ہیں تمام صوبوں میں یکساں طور پر کارروائی کا وقت آ گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، وفاق نیشنل ایکشن پلان کو سیاسی مخالفین کی بجائے پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا پبی میں استعداد دہشت گردی تربیتی مرکز کا دورہ۔ پاک ترک مشترکہ مشقوں اتاترک 9 کا معائنہ کیا۔ ترکی کی جانب سے اسپیشل فورس اور پہاڑی کمانڈوز نے حصہ لیا۔ اسلام
آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے مذہبی جماعتوں کا دھرنا جاری. انتظامیہ نے راجہ ظفر الحق اور وزیر مملکت مذہبی امور پیر حسنات سے مذاکرات کی پیشکش کر دی. پولیس اور رینجرز کی کارروائی. شہر کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. ریڈ زون کی ہیلی کاپٹر سے نگرانی. مذہبی جماعتوں کے دھرنے سے اسلام آباد میں شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا. جگہ جگہ پولیس ناکے، میٹرو سروس بند، پبلک ٹرانسپورٹ بھی غائب. بلو ایریا کے تاجروں کا کاروبار ٹھپ. بدترین ٹریفک جام نے دوہرے عذاب میں مبتلا کیے رکھا. کس چیز کی پردہ داری ہے؟ پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے جانے والی پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھارت کا ادھورا تعاون. ایس پی گرداسپور اہلیہ اور گن مین کے فونز کا ریکارڈ فراہم کیا. نہ ہی دوران آپریشن وائرلیس گفتگو اور ویڈیو کوریج. بارڈر پر کون سے اہلکار تعینات تھے یہ بھی نہیں بتایا. سندھ میں نقل سیزن کا آغاز. میٹرک امتحانات کے پہلے روز ہی نالائقوں کے ٹولے صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے نظر آئے. سکھر میں سوالیہ پرچہ ملتے ہی گائیڈیں کھل گئی اور سرعام کاپی پیسٹ کا فارمولا اپلائی ہوتا رہا. لاڑکانہ میں بھی دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کا آغاز بھی کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بلیٹن کا آغاز بڑی خبر سے کریں گے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سانحہ گلشن اقبال پارک نے ہر پاکستانی کا دل زخمی کر دیا. پوری قوم رنج و غم میں مبتلا ہے. قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. 13 سال تک کسی نے دہشت گردی کے فتنے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف قوم سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ 13 سال تک کسی نے دہشت گردی کے فتنے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا. یہ کہنا تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب چکایا جا رہا ہے. اللہ اور رسول کے نام پر لا قانونیت، جلاؤ گھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، بدامنی پھیلانا اور عام انسانوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. اس سلسلے میں روا رکھی گئی نرمی کو ریاست کی کمزوری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے بسی نہ سمجھا جائے. انسانیت کے دشمن اخلاق اور جغرافیہ کے حدود سے نکل چکے ہیں. لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین انسانیت کے ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے. پچھلے 3 برس کے دوران حکومت کے پختہ عزم، مسلح افواج، پولیس اور قومی سلامتی کے اداروں کی جد و جہد اور عوام کی تائید و حمایت سے دہشت گردی کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے. ہم انہیں دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے انشاءاللہ. ہم انہیں پاکستانیوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ الحمدللہ میرا عزم ہے، میری حکومت کا عزم ہے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا عزم ہے. انشاءاللہ کوئی دہشت گرد ہمارے اس عزم کی فصیل میں شگاف نہیں ڈال سکتا. میری بہنوں اور بھائیوں، دہشت گرد یہ مت بھولیں کہ عظیم پاکستانی قوم ایک فولادی عزم کے سانچے میں ڈھلی ہے. دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں انشاءاللہ نہ اس قوم کے پختہ ارادوں کو کمزور کر سکتی ہیں، نہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم روک سکتی ہیں. ہم نے غربت، پسماندگی اور جہالت سے لڑنے کی قسم کھائی ہے. ہم نے اندھیروں کو روشنیوں سے بدلنے کی نہ صرف ارادے کیے بلکہ وہ بھی قسم کھائی ہے. ہم نے
इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और नफरतों को अमन, मोहब्बत और एतदाल से बदलने की कसम खाई है। इंशाअल्लाह कोई दहशतगर्दी, कोई फितना, कोई बदअमनी और कोई साजिश हमें अपनी तय करदा मंजिल की तरफ पेश कदमी से नहीं रोक सकती। शरीफ ने कौम से खिताब किया है, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर दिफाई तजियाकार इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब आपके वक्त के लिए। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है। सानिया लाहौर को लेकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म किया है, क्या कहेंगे उनके खिताब पर आप? देखिए, अच्छी बात है कि एक मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म ने आगे बढ़ के कौम से खिताब किया। उनका अगर बज़ाहिर मकसद यही था कि कौम को हौसला दिया जाए और इस तासुर को ज़ाहिल किया जाए कि फ़ौज और सियासी क़ुव्वतों के दरमियान शायद कोई रखना पड़ा हुआ है, उनके खिताब से बिलाशुबा ये ज़ाहिर हुआ, जिस तरह उन्होंने फ़ौज और फ़ौजी जवानों की उनकी कुर्बानियों की तारीफ़ की, कि वो बिलाशुबा मुत्तफ़िक है, एक ही पेज पे हैं। लेकिन हमें ये भी जहन में रखना होगा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग महज कस्में खाने से, वादे वईद करने से नहीं जीती जा सकेगी, बल्कि ठोस इक़दामात के ज़रिए इस लानत से छुटकारा किसी हद तक हासिल किया जा सकता है। इंतहा पसंदी का जो जिन यहाँ पे पल रहा है, उसका सामना हमारी और उसके में लीड यानी रहनुमाई उसमें हमारी सियासी क़यादत ने करनी है। फौज तो सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशंस करती है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी तमाम तर सियासी क़यादत इंतहा पसंदी के हवाले से, क्योंकि एक नज़रियाती जंग है, इसको आपने सियासी सतह पे लड़ना है, समाजी सतह पे लड़ना है, लोगों की जहन साजी करनी है। आया आप जहन साजी पे तैयार हैं? अगर आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों के वाक़यात देख लें और गुज़श्ता 36 घंटों में जो कुछ हुआ है उसको देख लें, तो ऐसा लगता है कि अवाम की जहन साजी तो कुजा, उसकी पेशबंदी, बुरे वाक़यात की या नाखुशगवार वाक़यात की पेशबंदी भी नहीं की गई। और बड़ा पाकिस्तान की शदीद बदनामी हुई है गुज़िश्ता 1.5 दिन के दौरान कि आपके पास एक तो पेशबंदी की विजन नहीं है, दूसरी तरफ फिर मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं है। यानी एक दफ़ा एक वाक़या जब हो जाता है, उसके बावजूद 2-4-5 हज़ार लोग आपके रेड जोन में दाखिल हो जाते हैं, तो उससे बहुत एक इंतहाई बुरा तासुर पैदा हुआ है पाकिस्तान के हवाले से। इम्तियाज साहब, जहन साजी की बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन हमारी कौम में बड़ा सब्र है इम्तियाज साहब। लेकिन वजीर आजम ने आज कहा कि हमारी नरमी को कमजोरी ना समझा जाए। आपके ख्याल में अब बहुत देर नहीं हो चुकी? ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जैसे एक ऑपरेशन का आगाज होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। देखिए, जब ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का आगाज हुआ तो एक बहुत वाज़ेह पैगाम था कि कबायली इलाकों से जो लोग भी अफगानिस्तान या भारत के लिए खतरा बने हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ बिला तमीज़ कार्रवाई की जाएगी। उसके नतीजे में जरूरी यह था कि शहरों के अंदर यानी फाटा से हट के पुलिस, सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे और सियासी क़यादत मिलजुल कर एक ऐसा लाएअमल तैयार करती जो कि बज़ाहिर तो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में सामने आया, लेकिन उस प्लान पे फिर जो मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाते, वो अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसका नतीजा आपने देखा कि चंद हजार लोग 29 फरवरी 1 मार्च को तोड़ फोड़ में मुलविस हुए। कल एक बार फिर वही मुजाहरा देखने को आया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बार बार हम ये पूछ रहे हैं, हमसे भी लोग पूछ रहे हैं इंटरव्यूज में, कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी FIRs आपने काटी हैं, कितने पुलिस को आपने इख्तियारात दिए हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले चुके हैं और आपकी बात बड़ी वैलिड है कि ठोस इक़दामात की जरूरत। आपने वक्त दिया एक्सप्रेस न्यूज को, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हुक्म पर पंजाब भर में दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस का आगाज कर दिया गया। 24 घंटों में आर्मी चीफ की सदारत में आला सतह के 2 इजलास भी हुए। गुज़श्ता रात से जारी ऑपरेशंस में कई मुबैना दहशतगर्द और उनके सहूलतकार पकड़े गए हैं। मजीद बता रहे हैं अहमद मंसूर। लाहौर में दहशतगर्दी के हौलनाक वाक़े ने फौज के बड़ों को भी सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया।
गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में दहशत गर्दी की इत्तला मिलते ही आर्मी चीफ ने तमाम मसरूफियात छोड़ दी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुला लिया। घंटों जारी रहने वाले इजलास में पंजाब में दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला किया गया। आर्मी चीफ का हुक्म मिलते ही पंजाब भर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को लेकर आज GHQ में आर्मी चीफ की सदारत में फॉलो अप इजलास भी हुआ। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा बताते हैं कि पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार की रात से अब तक 5 ऑपरेशंस किए हैं, जिनमें कई मुश्तबा दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन के नतीजे में नए शवाहिद सामने आ रहे हैं और इनकी बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं। जराये बताते हैं कि मुश्तरका ऑपरेशंस की निगरानी आर्मी चीफ खुद कर रहे हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर पर खूनी वार करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने पंजाब भर में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बताएं कि छापों के दौरान कलदम तंजीमों के दर्जनों कारिंदे शिकंजे में आ गए, जबकि सरगोदा से 2 दहशतगर्द पकड़े गए। लाहौर में हंसती खेलती जिंदगियों को मौत के अंधेरों में धकेलने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला हो गया। साने लाहौर के बाद पंजाब भर में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर दर्जनों मशकूक अफराद को धर लिया। सबसे बड़ी कार्रवाई गुजरांवाला में की गई, जहां सिक्योरिटी इदारों ने 78 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह फैसलाबाद से भी 30 मशकूक अफराद पकड़े गए। सियालकोट और नारोवाल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीमों के कई कारिंदे हिरासत में ले लिए। बिहाड़ी में भी सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के साथ साथ 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली गयी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन करके 50 से ज्यादा मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2000 से ज्यादा सरगर्म कारिंदों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। 4th शेड्यूल में शामिल कलदम तंजीमों के 14 कारकुनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के 4 कारिंदे पकड़े गए हैं। सरगोदा में सिक्योरिटी फोर्सेस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब जनूबी वजीरिस्तान से आए 2 मशकूक अफराद हत्थे चढ़ गए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान बताई जाती हैं। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में धमाके के बाद से शहर भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। धमाके के 300 से ज्यादा जख्मियों में से 11 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सानिया लाहौर सोमवार के रोज शहर की फिजा भी सोगवार रही और मार्केट्स भी बंद रही। मजीद बताएंगी मरियम रफी। लाहौर का गुलशन उजड़ गया। दहशतगर्दों ने तफरीह गाह को मक्तल गाह बना डाला। जख्मों से चूर शहरी बताते हैं धमाके के बाद हर तरफ चीखों पुकार मच गई। जैसी ब्लास्ट की आवाज आई है तो हमने दौड़ भाग शुरू कर दी है। तो बस मैं मिसेज को बच्चों को ढूंढ रहा हूँ और ये मुझे ढूंढ रहे हैं। हर तरफ एक क़यामत का ही मंजर था। अचानक ब्लास्ट हुआ, आग के शोले देखे, लोगों की भगदड़ मच गई। इस हौलनाक धमाके में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिन्हें म्यू अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, जनरल और फारूक अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेशतर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। सफाक दहशतगर्दों के खूनी वार ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया। पीर के रोज लाहौर की छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद रहीं। लाहौर में बेशतर स्कूल भी बंद रहे और शहरी एक दूसरे से सहने पर अफसोस करते दिखाई दिए। हुकूमत
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में 3 रोजा सोग मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू है। साथी रिपोर्टर तालिब फरीदी के साथ मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अभी आपको अहम खबर देते हैं। सानिया लाहौर के बाइस वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपना दौरा अमेरिका का मंसूख कर दिया है। वजीर आजम दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ होंगे। अहम खबर सानिया लाहौर को लेकर वजीर आजम ने दौरा अमेरिका मंसूख कर दिया। मजीद बात करते हैं, खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद बताइएगा। देखें जी, वजीर आजम नवाज शरीफ ने 31 मार्च को वाशिंगटन जाना था, जहाँ पे न्यूक्लियर समिट जो है वो हो रही थी और इसमें पाकिस्तान की शिरकत जो है वो यकीनी थी। लेकिन सानिया लाहौर के बाद वजीर आजम ने अपना ये दौरा मनसूख कर दिया है और उनकी जगह पर अब मुआविन खुसूसी तारिक फातमी जो है वो पाकिस्तान की क़यादत करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इससे पहले वजीर आजम ने लंदन के दौरा के बारे में भी ऐलान किए गए थे कि उनका दौरा लंदन जो है वो महदूद कर दिया गया है, मुख्तर कर दिया गया था। लेकिन आज वजीर आजम ने सानिया के बायस जो है अपना दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया है और अब तारिक फातमी पाकिस्तान की क़यादत करेंगे वहाँ पे। जी सही, वजीर आजम ने सानिया लाहौर को लेकर ये दौरा मंसूख किया है। खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने जिना अस्पताल जाकर लाहौर धमाके के जख्मियों की इयादत की। दूसरी तरफ इजलास में वजीर आजम ने नाकिस सिक्योरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए जनूबी पंजाब में दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की है। मजीद बता रहे हैं राय शाहनवाज। गुलशन इकबाल पार्क धमाके में कीमती जानों के ज़िया के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दौरा बरतानिया मंसूख किया और लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने चौधरी निसार और शहबाज शरीफ के साथ जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत की और अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास की सदारत भी की। नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात क्यों नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात का जायजा भी लिया। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने की हिदायत की और कहा किसी सहूलतकार को ना छोड़ा जाए। इजलास में वज़ीर आला, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, होम सेक्रेटरी और IG पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस हमले की कोई पेशगी इतला नहीं थी। हुकाम ने बताया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सहूलतकारों की निशानदेही के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म को यह भी बताया गया कि पंजाब से दहशत गर्दों और उनके हामियों को खत्म करने से मुतालिक हिकमत अमली बना ली गई है। इजलास के कुछ घंटों बाद फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की तस्दीक कर दी है। साथी रिपोर्टर मरियम रफी के साथ राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर पुलिस ने गुलशन इकबाल पार्क में धमाका करने वाले दहशतगर्द का खाका जारी कर दिया। मुबैना खुदकुश हमलावर मोहम्मद यूसुफ के बारे में तफ्तीश की जा रही है। ताहम पुलिस इसे हतमी तौर पर दहशतगर्द करार देने को तैयार नहीं है। मजीद बताएंगे नौमान शेख। लाहौर पुलिस ने ऐनी शाहिदीन और जाए वकुआ से मिलने वाले सर की मदद से मुबैना दहशतगर्द का खाका तैयार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द की उम्र 22 से 25 साल, का दरमियाना, जिस्म मजबूत, बाल घने, चेहरा पतला और हल्की हल्की दाढ़ी थी। गुलशन इकबाल पार्क में जाए वकुआ से पुलिस को यूसुफ नामी शख्स का शनाख्ती कार्ड मिला और करीब से ही उसके सर के और धड़ का कुछ हिस्सा भी मिल गया। इन शवाहिद की बुनियाद पर यूसुफ को खुद को हमलावर समझा जाने लगा और पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई करके यूसुफ के घर वालों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ की लाहौर में रिहाइशगाह पर भी छापा मारा। दूसरी तरफ CCP और लाहौर अमीन वैंस कहते हैं मुबैना खुदकुश हमलावर की हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है, ताहम अभी मोहम्मद यूसुफ को दहशतगर्द करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए शहरियों से ताउन की अपील भी की है। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। FIR के मुताबिक लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में खुदकुश बमबार गेट नंबर 5 से दाखिल हुआ। ये वाकया कैसे हुआ और गेट नंबर 5 से धमाके की जगह तक का अहवाल जानते हैं। ये है लाहौर गुलशन इकबाल पार्क का गेट नंबर 5। शाम 6:40 4 दहशतगर्द, जिनमें से एक ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी, पार्क के गेट नंबर 5 पर पहुंचे। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार ने इन अफराद को मशकूक जानकर आवाज लगाई। 4 में से 3 मौके से फरार हो गए, जबकि खुदकुश बमबार दौड़ता हुआ पार्क का गेट पार करने में कामयाब हो गया।
गेट नंबर 5 से झूलों का फासला चंद गज है। खुदकुश हमला आवर ने 2 झूलों के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 10 किलो से ज्यादा मवाद इस हमले में इस्तेमाल किया गया। मौसम बहार के रंग देखने आए एक ही खानदान के 11 अफराद मनो मट्टी तले जा सोए। जिसने भी सुना आंसू छलक पड़े। हंसते बसते घरों में सफे मातम बिछ गया। कौन जानता था मासूम बच्चे गुलशन इकबाल पार्क से कभी वापस घर नहीं आएंगे। मासूम कह कहे और प्यार भरी शरारतें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। माँ बाप अब कभी अपने लखते जिगर के प्यारे लबों से मामा बाबा की मीठी आवाज नहीं सुन पाएंगे। धमाके की भयानक आवाज ने सब छीन लिया, गुलशन उजाड़ दिया, फूल मुरझा गए और झूले झूलते नन्हे फरिश्ते मट्टी ने गोद ले लिए। कुछ हमारे मजीद अफराद वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी ऑपरेट चल रहा है, कई जख्मी हालत में। जरा सोचें इस खानदान पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने 11 खून के टुकड़े एक ही वक्त में खो दिए। ये देखें हंसती खेलती जिंदगी की वो तस्वीर जो धमाके से कुछ देर पहले ली गई। ये खानदान सूबा सिंध के जिला सांगड़ से आया। फैज नामी शख्स लाहौर में अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शिरकत के लिए बच्चों के साथ आया था, लेकिन दहशतगर्दों ने शादियाने मातम में बदल दिए। मेजबान और मेहमान फैमिली के 25 अफराद पार्क में आए, जिनमें से 11 हमेशा के लिए बिछड़ गए। फैज मोहम्मद, उसकी 2 बेटियां, एक भतीजी फैजू का बरादरे निस्बती शानी और एक बेटा शिराज तो मौके पर ही दम तोड़ गए। 7 साला बेटी समीना सुबह चल बसी, जबकि फैजू के मेजबान मियां बीवी अमजद और जुबैदा, उनकी 2 बेटियां भी एक साथ चल बसे। इस खानदान के 6 अफराद जख्मी हैं। सांगड़ का फैज तो 11 रिश्तेदारों समेत चल बसा, लेकिन इसके 2 बच्चों ने हमेशा के लिए अपने वालिद को खो दिया। इन बच्चों ने क्या देखा, आइए दिल दहला देने वाली दास्तान सुनते हैं सैयदा शहर बानो से। ये हैं अली और ज़ैनब, जिनका ताल्लुक उस बदकिस्मत खानदान से है जिसके 11 अफराद धमाके की नजर हो गए। अपने वालिदैन के साथ खुशियां मनाने गुलशन इकबाल पार्क आने वाले ये बहन भाई अब कभी अपने वालिदैन को नहीं देख पाएंगे। दोनों मासूम फूल पार्क में झूले झूलना चाहते थे। माँ बाप अपने बच्चों की मासूम ख्वाहिश को पूरा कर ही रहे थे कि धमाके ने सब खत्म कर दिया। 3-4 जो सीरियस हालत में हैं, तो 2 ये बच्चे हैं, इनकी भी हालत जो आपके सामने है। सिंध से आए ये दोनों जख्मी बहन भाई इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। दोनों अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इनकी जिंदगी भी खतरे में है। इन मासूमों को भरपूर दुआओं की जरूरत है। सैयदा शहर बानो, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम का कौम से खिताब, कहते हैं अल्लाह रसूल के नाम पर बदअमनी फैलाना किसी सूरत कबूल नहीं। कमांडर सदर कमान आमिर रियाज का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और सानिया लाहौर पर आलमी बरादरी का भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। अमेरिका, भारत, फ्रांस, रूस और दीगर ममालिक ने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दी।
अभी आपको अहम खबर दें, सानिया लाहौर धमाके में जख्मी याकूब ने तफ्तीशी इदारों को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जख्मी याकूब ने अपने बयान में कहा है कि यूसुफ अपने साथियों के हमरा गुलशन इकबाल पार्क सैर के लिए आया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नोमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है जख्मियों की जानिब से तफ्तीशी इदारों को? जी बिल्कुल, याकूब ने बताया है कि वो हर इतवार को जो है बिलाल और इस अपने साथी यूसुफ के साथ इस पार्क में आते थे और इस इतवार भी वो अपने रूटीन के मुताबिक यहाँ पे आए थे और वहाँ पे ये तस्वीरें उतार रहे थे बिलाल और यूसुफ एक दूसरे की कि याकूब जो है करीब कैंटीन से लेने के लिए कुछ गया है तो पीछे धमाका हो गया। उसने इस बात की तरदीद की है कि यूसुफ जो है वो किसी तरह से भी दहशतगर्द था, क्योंकि ये तीनों तालिबे इल्म थे जो कि इकट्ठे यहाँ पे आए थे और हर इतवार को यहाँ पे ये आते थे। जी ठीक, ये बयान रिकॉर्ड कराया गया है जख्मियों की जानिब से। नोमान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने मजहबी जमातों का धरना जारी है। अहम इमारतों की हिफाजत के लिए फौज तैनात है। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान ताहाल मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। मजहबी जमातों के शुरका का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना जारी है। रात को आंसू गैस की शेलिंग, पथराव और जलाओ घेराव होता रहा। पाक फौज की आमद के बाद से हालात पुरअमन हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ धरने में शरीक मुजाहिरीन की तादाद में काफी हद तक कमी आ चुकी है। मीटिंग हो, मुज़ाकरात हो, वो आर्मी की निगरानी में, इसके बगैर हम मुज़ाकरात नहीं करते। और सियासी शख्सियात में उसमें स्पीकर सादिक साहब है और मलिक वो इसहाक डार साहब है, ये दो नाम दिए। हुकूमती सतह पर मुजाहिरीन के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। इसके बाद धरने देने वालों ने राजा जफरुल हक और पीर हसनान से मुज़ाकरात की एक और पेशकश की है। पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ईवान सदर, सुप्रीम कोर्ट और पाक सेक्रेटेरिएट समेत तमाम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी पाक फौज ने संभाल रखी है। पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है। रेड जोन में धरने के शुरका की हेलीकॉप्टर के जरिए दिन भर फजाई निगरानी भी की जाती रही। मुजाहिरीन के लिए खाने पीने की अशिया ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी दूसरे रोज बंद रही। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।